dear students. I am Yogi Dharmesh, and in this session, I am going to discuss some of the important history MCQs as well as economics. From economics section also, I will discuss some MCQs. Now, without wasting our time, let's start our most important MCQs session. Now, the first question is, who was Frederick Sorio? Who was Frederick Sorio? A philosopher, B, a painter, C, a politician, D, a revolutionary. So, Frederick Sorio is whom? A philosopher, or a painter, or a politician, or a revolutionary. Now, second question is, what was the basic philosophy of conservatives? What was the basic philosophy of conservatives? They opposed monarchical forms. B, they were supporters of democracy. C, they wanted to glorify folk art and vernacular language. D, they stressed the importance of tradition and established institutions and customs. Now, in this question, you have to select the most appropriate answer. What is the basic philosophy of conservatives? They opposed monarchical forms. A. B. They were supporters of democracy. C. They wanted to glorify folk art and vernacular language. D. They stressed the importance of traditions and established institutions and customs. Now, question number 3. What was the main objective of the Treaty of Vienna of 1815? Treaty of Vienna 1815 में मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है? नंबर ए, to undo the changes brought about in Europe during Napoleonic War. B, to make the unification of German regions. C, to restore democracy in Europe. D, to overthrow the Bourbon dynasty. Main objective of the Treaty of Vienna of 1815. A, to undo the changes brought about in Europe during Napoleonic War. B, to make the unification of German regions. C, to restore democracy in Europe. D, to overthrow the Bourbon dynasty. इसमें कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रीटी ऑफ वियना का? क्वेश्चन नंबर 4. When was custom union or Zollverein formed or founded? When was custom union or Zollverein founded? Is it A, 1832, B, 1833, C, 1834 or D, 1836? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. Now, next question number 5. Who was the guiding force for the unification of England in 1707? Who was the guiding force for the unification of England in 1707? Is it monarchy? B, conservatives? C, parliament? D, none of these? Who was the guiding force for the unification of England in 1707? किसकी मजबूती से या किसके फोर्स से यूनिफिकेशन हुआ है इंग्लैंड का? क्या वो मोनार्की है या कंजर्वेटिव्स या पार्लियामेंट या नन ऑफ दीज? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि सारे हमारे अपने हैंड रिटेन नोट्स हैं और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस हमारे सारे एमसीक्यूज़ को आप थोड़ा सा देखें उसको क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये और ये आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा आपके एग्ज़ाम्स में। मेरे सारे एमसीक्यूज़ हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। Hardly it will take half an hour or more, but those MCQs are very very important. Please go through that. Now let us discuss question number 6. Who led the famous expedition of the thousand of to South Italy? Who led the famous expedition of the thousands to South Italy? फेमस एक्सपेडिशन रहा है किसका? थाउजेंड्स टू साउथ इटली। ग्यूसिपी मैजिनी, ग्यूसिपी गैरिबाल्डी, काउंट केवोर या विक्टर इमानुएल टू, इसमें से किसका एक्सपेडिशन था? द थाउजेंड्स टू साउथ इटली। इज इट ग्यूसिपी मैजिनी और ग्यूसिपी गैरिबाल्डी और काउंट केवोर और डी विक्टर इमानुएल टू? Now come to question number 7. What were the consequences of the July Revolution of 1830? What were the consequences of the July Revolution of 1830? A constitutional monarchy with Louis Philippe at its head was installed in Germany. What were the consequences of the July Revolution of 1830? A constitutional monarchy with the Louis Philippe at its head was installed in Germany. B. Uprisings in Brussels took place which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands. C. Both A and B. D. None of these. क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत लॉजिकल ढंग से देखना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है, इसमें कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है या कहीं कोई ऐसे शब्द जो सारे स्टेटमेंट्स को रॉन्ग कर देते हों। बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस पढ़ने हैं और बिल्कुल घबराना नहीं है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। जब भी आपको पेपर मिले तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। व्हेन डिड द आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टेक प्लेस? आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट रशियन रूल कब हुआ है? ए 1821, बी 1824, सी 1831 और डी 1834। क्वेश्चन नंबर 9. When did Giuseppe Garibaldi attempt a revolution in Liguria? When did Giuseppe Mazzini attempt a revolution in Liguria? Is it 1821, 1824, 1831 or 1834? 1821, 1824, 1831 or 1834. Up question number 10. When did a large number of political associations came together to vote for an all German National Assembly? When did a large number of political associations came together to vote for an all German National Assembly? February 1848 or May 1848, July 1848 or December 1848? So these questions are very very important. Please students, boys and girls, please go through these questions, these MCQs. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे दिए हुए MCQs में से कम more than 10 MCQs will definitely
फ्रॉम माई MCQs। सारे MCQs हमारे प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके देख सकते हैं। और ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है, सारे आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस अभी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ एनी नेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ एनी नेशन। ए हायर नेट अटेंडेंस रेशियो, बी हायर लिटरेसी रेट, सी हायर IMR means infant mortality rate, डी हायर एनरोलमेंट रेशियो। इसमें से कौन सा गोल नहीं रहता है किसी भी नेशन के लिए, वो गोल नहीं है। ए हायर नेट अटेंडेंस रेशियो, बी हायर लिटरेसी रेट, सी हायर IMR और डी हायर एनरोलमेंट रेशियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट आर ए materialistic things, B monetary things, C non-materialistic things और D unimportant things। फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट क्या है? क्या ये मटेरियलिस्टिक है या मॉनेटरी है या नॉन मटेरियलिस्टिक है या अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है? विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्स। पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्स इसमें से कौन सा है? शायद ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्स। कौन सा एग्जाम्पल है? ए नेचुरल गैस, बी पेट्रोलियम, सी कोल या डी टाइडल एनर्जी। इसमें से कौन सा पोटेंशियल एनर्जी रिसोर्स है? Question number 4. Which of the following is an activity of unorganized sector? Which of the following is an activity of unorganized sector? A nurse working in a government hospital, B a teacher working in a government school, C a farmer farming his field, D a clerk working in the post office। इसमें से कौन सा एक्टिविटी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है? ए नर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अ टीचर वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल, अ फार्मर फार्मिंग हिज फील्ड और डी अ क्लर्क वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? ए इज इट एवरेज इनकम, B total income divided by its populations, C both A and B या D none of the above। कौन सा इसमें सही है? पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं? क्या वो एवरेज इनकम है, बी या टोटल इनकम डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, फैक्चुअल बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। लिटरेसी रेट मेज़र। लिटरेसी रेट क्या मेज़र करता है? ए लिटरेट पॉपुलेशन इन द 5 एंड अबव एज ग्रुप, बी लिटरेट पॉपुलेशन इन द 6 एंड अबव एज ग्रुप, सी लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप, डी लिटरेट पॉपुलेशन इन द 14 एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट किसे मेज़र करता है? क्या वो 5 एंड अबव एज ग्रुप वालों जो लिटरेट पॉपुलेशन है उनको करता है, या 6 एंड अबव एज ग्रुप को, या 7 एंड अबव एज ग्रुप को, या 14th एंड अबव एज ग्रुप को? ये सारे क्वेश्चंस मैं फिर से बता दूं कि ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके अपकमिंग CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, SST एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे सारे MCQs हमारे प्लेलिस्ट में हैं, प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लीजिए और कोशिश करिए इस क्वेश्चंस को एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस आप इसको देख लें, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लें और इससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा।
और इस सारे MCQs के जो आंसर्स हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन्हें जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिए। और MCQs और कुछ क्वेश्चंस जो सुपर सीरीज़ में आने वाले हैं वो आपको मिल जाएं, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन पे आपको प्रेस करना होगा। चलिए, और इस MCQs पे थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि 20 मार्क्स होता है MCQs में, तो इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और मेहनत करिए। अब समय भी नहीं है, तो जितना आपको रिवीजन कर सकते हैं आप करिए। ओके, थैंक यू बॉयज़ एंड गर्ल्स, थैंक्स अ लॉट।